Assalamu alaikum. This is Sayyida Samia Ali. Welcome to another episode of Talk It Out. Today we have Miss Samreen Noman Ansari. She's from ICMA. She's the director there. She's a corporate trainer provider and a consultant and an ex-banker. So let's hear it from her. What does she think about women empowerment and what is the gap between academia and jobs in today's market? Over to you, ma'am. Thank you so much, Ms. Amia, for having me here. I am taking care of the corporate training programs, and I've been a corporate trainer and a consultant, and we are doing this under the head of Center of Excellence at ICMA. Okay, that's great. That's great to know. अच्छा, I've got to know after reading your profile कि आप लोग job training provides करते हैं और आप लोग एक academia body भी है. So how do you balance that? What's the thought process behind it, and how do you make things work? All right. Actually, ICMA itself is an academic body. We are actually creating chartered management accountants. Having said that, there is a lot of requirement of the professional skill sets in the market, and the kid who is passing out from the academic schedule is actually reaching out to the professional world, which he is totally unknown of. So we thought of creating an institution that takes care of upskilling the students who are maybe coming out, passing out from the universities, or maybe the professionals already working in the market and are actually having dearth of skill sets. Maybe they need to be improvised about that. So we are actually looking after those areas. ओके, दैट्स ग्रेट टू नो. अच्छा, मुझे एक और बात जाननी है. आजकल आपको पता है यूथ है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद उनको समझ नहीं आता वेयर टू गेट जॉब एंड हाउ टू गेट जॉब. जो वेबसाइट्स हैं, rosie.com हो गई है, indeed.com है, वहाँ पे लाखों की तादाद में एप्लीकेशंस हैं. बट हाउ डू दो स्टूडेंट्स नीड टू बी श्योर कि हमारी एप्लीकेशन सिलेक्ट होगी? एक्चुअली ऐसा है कि एक तो CV राइटिंग, बिकॉज इट्स द फर्स्ट थिंग दैट गोज टू द एम्प्लॉयर, पोटेंशियल एम्प्लॉयर, सो इट हैज़ टू बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड, number one. Number two, to draft that, we have to have a lot of counseling done at our institution, so that we are geared up for that. We are already aware how to create our CV, maybe to put some areas of expertise, or maybe potential areas where our institutions going forward would like us to perform. So we need to put that on the CV, and we need to draft it in an articulate manner, so that the potential employer might see that, because this is what they're looking after in that CV, because that is the initial document, right? It goes to the employer. So you need to work on that. Later on, when you are being called by those employers, then that's another story. Yeah, it's more like a रिश्ता पिक्चर गोइंग, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, पहले तस्वीर जाएगी. Exactly. अगर आपकी तस्वीर शॉर्टलिस्ट होती है तो फिर आपका बायोडेटा जाता है और उसके बाद फिर वो मिलने के लिए तो बड़ा अच्छा सा फिल्टर चाहिए तस्वीर के ऊपर. बिल्कुल बिल्कुल. Maybe B612 or maybe some Snapchat good filter wherein you're actually showing what is there inside you. So if you can portray that on that CV, then that becomes your picture, and people select you based on that. अच्छा, आजकल की यूथ स्पेशली गर्ल्स, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमें जहन में यही आता है कि फेमिनिज्म. So there's a very fine line between being a feminist and being an empowered woman. So can you guide our audience or tell them what is that fine line and how can girls especially manage that fine line? It's, by the way, a big question. And let me just, put it in a manner that girls, when they are actually becoming a person, I mean, I say that it's a person, it's not a girl or a boy. When you reach out to the market, you have to have a lot of personality, a lot of attitude, a lot of understanding of your own self as to who you are as a person, rather than becoming a girl or a boy. So it goes beyond that. When you know who you are as a person, when you know your abilities, you also are very flexible to accept people in your life. May it be your job, may it be your life, may it be your relationship. A lot of acceptance is required, a lot of adaptability is required in yourself. So when you are flexible enough to adapt to the new environment, when you're flexible enough to accept people in your life, in your surrounding, it makes it very easier for even girls, to mingle into their lives, to become empowered women. That thin fine line is maybe the acceptance and flexibility that we are missing out. We're becoming very rigid in terms of feminism. I don't understand is jargon ko, why are we like looking at a very strict and rigid manner? क्योंकि लोगों को अब ये हो गया ना कि हमने पढ़ाई की है, इतनी मेहनत से की है, हमें जॉब करनी है, हम डॉक्टर बन के बहू क्यों बने, चूल्हा क्यों संभाले, रोटी क्यों बनाए, हमने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, so we must be working. So I think girls should especially understand that it's good to work, but you need to balance. अब ये बात आप अपने बेटर हाफ के लिए भी बोल सकते हैं
कि my husband is there, he should also be working in a balanced mode, तो वो possible है, but communication is the biggest thing जो हमारी जनरेशन में बहुत लैक करता है. What do they do is मोबाइल उठाया, मैसेज किया, I'm upset with you, हस्बैंड को ही ब्लॉक कर दिया. लड़के ने मोबाइल उठाया. I know for a fact some people are there जिन्होंने मुझे बोला कि I was so angry with my husband, I blocked him. Wonderful. तो जब वो आके apologize करेंगे तो मैं फिर उनको अनब्लॉक कर दूंगी. बस बात वहीं से स्टार्ट होती है. देखिए, रिजिडिटी, आपकी पर्सनालिटी में जो रिजिडिटी होती है, जो स्ट्रिक्टनेस होती है, जो स्टबननेस होती है, वो आपको लोगों को एक्सेप्ट करने नहीं देती है ना. एंड दैट वन थिंग विच इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस इज एक्चुअली समथिंग दैट पेव्स द वे टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स. सो मे इट बी योर पर्सनल रिलेशनशिप, मे इट बी योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी इज समथिंग, एंड दैट डज नॉट इन एनी वे मीन दैट यू आर बीइंग कॉम्प्लेक्स और या आपकी रिस्पेक्ट को कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है. नो नो नो, आपकी रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, आपसे सिर्फ एक्सेप्टेंस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपकी पर्सनालिटी में दैट एलिमेंट इज एडेड, दैन पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू ऑल्सो. सो इट हैज़ टू बी यू हु आर द फर्स्ट पर्सन टू डू दैट, सो दैट द अदर्स स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने पास कुछ एक चीज़ प्रैक्टिस करें. फॉर एग्जाम्पल, आई नो समवन, she moved from overseas to Pakistan, and then उन्होंने there was this family ritual that she used to do. She used to put her dishes back by herself. अब पाकिस्तान में तो बहुत कल्चर है कि आपने खाना खाया, आप उठ के चले गए, आपकी टेबल साफ हो गई, कोई आया उसने टेबल साफ कर दी. लेकिन जब उसने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी शुरू की, क्योंकि वो करती आ रही है, अब जब उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि कैन यू प्लीज़, तो उनकी सास को बहुत बुरा लग गया. ऐसा ही है. और ये उनकी सास को इसलिए बुरा लगा, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, आज से पहले तो कभी नहीं किया, तो अब क्यों. तो इस बात के ऊपर, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इंसान को अपनी जगह बनानी पड़ती है. नाउ द सेम सन एंड द अदर सन ऑल्सो, दे पिक अप देयर डिशेज एंड एवरीथिंग. अब कोई किसी को नहीं बोलता, इसलिए बिकॉज आई थिंक अडेप्टेबिलिटी हमारे एंड से भी आई. क्योंकि मैंने भी उस वक्त मुझे लगा कि जिस बंदे ने जो मुझे स्टोरी बताई थी, कि उस वक्त लगा कि यार ओके, थोड़ा उनका पर्सपेक्टिव भी तो समझें. शी इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड वेयर मेन डोंट वर्क, एंड दैट गर्ल इज गोइंग टू अ डिफरेंट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव वेयर मेन वर्क, बिकॉज दे हैव सीन इन देयर फैमिली मेन वर्किंग, हाउस होल्ड काम भी. तो ये यहाँ पे इस वक्त है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बच्चियों को समझने के लिए, इवन बच्चों को समझने के लिए, नॉट जस्ट द गर्ल्स बट द गाइज इज वेल. कि एक लड़की अगर इतना पढ़ के आ रही है तो वो गांव से उठ के नहीं आ रही है. शी इज़ नॉट इलिटरेट, शी नोज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, एंड शी नोज इफ शी इज टेलिंग यू समथिंग और रिक्वेस्टिंग यू समथिंग, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट बिकॉज उसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, बट बिकॉज वॉट यू विल बी टीचिंग योर किड्स इन द फ्यूचर. It goes both ways. It goes both ways. It goes both ways. You're expecting respect, give respect first. If you're expecting people to listen to you, listen to them first. Exactly. If you want them to retreat what you are actually doing, do it first. So what I have learned throughout my life is that, you know, breaking families is easy, believe me. गुस्सा करना, लड़ाई करना, किसी को बता देना this is what I want and I don't want anything else is very easy. Listening to them is difficult. Accepting what is happening around is difficult. And you know, then presenting yourself as somebody who people start accepting, because you also already accepted it initially. So others also start, आप उनका हाथ पकड़ते हैं ना, you're holding their hands, so they also start adapting to you. So this goes both ways. अच्छा, अगर वाइफ काम कर रही है, हस्बैंड काम नहीं कर रहा, तो गोइंग फॉरवर्ड जब वो ये देखेगा तो करेगा. जैसे भी आपने स्टोरी नरेट की, दिस हैपेंस, यस, सो इट इज़ यू हु इज़ द फर्स्ट. अच्छा, मजे की बात ये है कि लोग घर पे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन ऑफिस में बॉस की तो सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहे होते हैं. चाहे वो डांटे, चाहे वो उनको अच्छा लगे बुरा लगे. व्हाई? बिकॉज यू आर बीइंग पेड फॉर दैट? आई डोंट थिंक सो. होता क्या है कि हमारे यहाँ पर जो ना एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है. आई मीन एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि घर में मुझे बहुत हमेशा से लाड मिला है, मैं अपने घर में बहुत लाडली बेटी थी, एंड यू नो पीपल यूज टू लिसन टू मी इवन बिफोर आई वांटेड समथिंग. आई यूज टू लुक एट समथिंग एंड माय फादर यूज टू बाय इट फॉर मी, और मे बी इफ आई वाज नॉट वेल देन पीपल यूज टू कम एंड गिव फीड मी ऑन द बेड. एंड हमारी एक्सपेक्टेशंस है ना. मैं भी जब शादियों की, मैं तो ये कहती थी, मेरे अब्बा तो पहले दवाई तैयार रखते थे, खाना मेरे बेड पर आता था. सो व्हेन आई गॉट मैरिड, आई मीन थिंग्स चेंज्ड. बिलीव मी, आई वाज इल, I had to tell people that I'm ill, please take me to the doctor. And this is right, because they have a different proposition at home, and they did not expect to, I was expecting that maybe if I'm not out of the room, people would come and check out
ऐसा नहीं होगा. You have to go out and tell them I'm not feeling well, please take me to the doctor. So these are the different levels of expectations you develop. मगर जब हम ऑफिस में होते हैं ना, we don't have any relationships with them, we do not expect anything from them. So we, even if that person is being hard on us, or that person is, you know, becoming a little bit angry or expecting us to work more than required time, we do not become very angry. Why? And we are not heartbroken. Why? Because we do not expect anything from them. देखिए जब हम अपने ससुराल में होते हैं ना, तो हम बड़ा एक्सपेक्टेशन, मेरे अब्बा क्या तो ये होता था, इनका नहीं होता है, हमने तो कभी ऐसे नहीं देखा, इन्होंने तो मेरे साथ ऐसे किया. सो वो जो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही होती है ना, उससे बहुत जो लड़की होती है वो टूटती है. और फिर वो रिजेंटमेंट्स, फिर दूरियाँ, फिर रिलेशनशिप के अंदर यू नो देयर आर थिंग्स दैट हैपन. बट अगर आप एक्सपेक्टेशंस नहीं डेवलप करते, आप थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन को पीछे रख देते हैं, हम ये देखते हैं कि सामने वाले के घर में क्या होता है, उसका सेटअप कैसा है, उनका फैमिली का यू नो द वे दे हैव बीन डीलिंग विद ईच अदर वो कैसा है. जैसे हमारे घर में जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो वी एक्चुअली यूज्ड टू बी वेरी मच रिस्पेक्टिंग, एज इन आप गए, आप आए, पापा अब्बू आपने ये किया, अम्मी आपने ये किया, मैं यहाँ गई थी, आपने वी यूज्ड टू टीच अदर, आप जनाब. हाँ, जब मैं अपने ससुराल में आई तो माय हस्बैंड वाज लाइक कि माँ ये कर दो. तो आई वाज लुकिंग एट हिम लाइक माँ ये कर दो. मुझे लगा कि ये शायद कुछ गलत हो रहा है, अभी इसके ऊपर जो मेरी सास है वो नाराज़ होने वाली. बट शी वॉज लाइक अरे सॉरी बेटा ये हो गया. ओ माँ, हाउ डिड शी रिस्पॉन्ड टू दैट? I mean, she did not take it seriously. So the reason behind it was they used to talk like that only at home. माँ तुमने ये क्या कर दिया यार, माँ तुमने इतना खाना दे दिया. I mean, so I was so astonished to see कि यार ये क्या हो रहा है. But later on, you know, I did not started my expectation level. मुझे पता था अच्छा यहाँ तो ऐसे ही करना है. तो I also started like माँ ये कर दो. So I also started mingling up with them, and then they started, because initially तो ज़ाहिर है मैं आप जनाब से ही कर रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा it's all right, it's like you know fun thing over here, we can do that. So I think adaptability is the most important thing in whether you are at home or whether you are at workplace. ऐसे ही है. अगर expectations आपको hurt करती है ना, तो please keep those expectations aside. I would suggest this to girls. Definitely. अच्छा, एक और बात मुझे जाननी है. Transnational education is a big thing in the market now. Now what is transnational education? ये हमारी audience को पिछली videos में पता चल गया है. What I want to know from you is, आपको क्या लगता है, getting a local degree is better or getting an overseas degree is better in Pakistani job market? ऐसा है कि सामिया, अगर आपको ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है ना, तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज सी वी आर अ ग्लोबल वर्ल्ड नाउ. ऐसा नहीं ना पाकिस्तान अपने जैसे नॉर्थ कोरिया है या कोई और साउथ कोरिया है, आई डोंट नो, एक कंट्री है ना जो बिल्कुल ही बंद है, दे डू नॉट अलाउ नॉर्थ कोरिया. सो आई मीन दे डू नॉट अलाउ यू नो ट्रेसपासिंग, दे डोंट हैव देयर इंटरनेट कनेक्टिविटी, दे डोंट, उनके पास तो 4 तरह के बाल कटवाने का भी स्टाइल है. ये कपड़े पहनेंगे, औरतें ये कपड़े पहनेंगी. पाकिस्तान इज नॉट लाइक दैट. पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर we actually encourage exports, imports, we actually encourage people coming in here in Pakistan for investments. So, and we allow our kids to go outside to study and work. So if we are such a country, global understanding of concepts is very much required, highly required. And if we had that capacity already developed, I see you guys are doing a wonderful job, because there are a number of things that we need to understand what is happening in the global market. Limiting ourselves to, you know, only the boundaries of Pakistan would also limit the understanding and learning of our young generation, which we should not. I see that in the curriculum areas that you have, you may also collaborate with the universities in Pakistan, maybe academic bodies in Pakistan, to you know provide a few of the programs there, maybe you know introduce those subjects here in other academic bodies also, so that we can actually educate the rest of the institutions in building up our you know academic you know the passing out students to be abreast with the global understanding as the way you are doing. So that is highly, I mean this is very good, I think, and highly recommended. क्योंकि पता है क्या होता है, बच्चों को लगता है कि दिस इज समथिंग न्यू इन द मार्केट, पेरेंट्स को भी यही लगता है कि इतना नया है, 4 साल की डिग्री पाकिस्तान में हो रही है, बाहर से 3 साल की मिल रही है, कहीं जाली तो नहीं. दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट कम्स इनटू, कि कोई स्कैम तो नहीं हो रहा हमारे साथ, हमारे बच्चे का फ्यूचर तो बर्बाद नहीं हो जाएगा. तो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक विद दिस पॉडकास्ट देयर विल बी अ लॉट ऑफ अवेयरनेस कि इंशाल्लाह कि कोई भी चीज़ अगर हम नई आती है इंडस्ट्री में, दैट डज नॉट मीन दैट इट्स अ स्कैम. दिस इज़ रियली ट्रू. अब आप लोग कराते हैं ICMA में, यू आर डूइंग इंटरनेशनल चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो कैन यू टेल समथिंग अबाउट दैट? हाउ डज इट मूव? बिकॉज इट हैज़ द वर्ड इंटरनेशनल इन इट. तो इज इट लाइक एन इंटरनेशनल डिग्री प्रोवाइडर? इज इट अ लोकल डिग्री प्रोवाइडर? हाउ इज इट? Actually, ICMA is an institution that has been passed in the charter.
and in I believe 62's charter. And from there, then only we started off with this chartered management accounting degrees that has been, now it has been rated as I believe masters की डिग्री की इसकी वैल्यू है. और इसके बाद आप जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि somebody who is a CMA is also given the registration certificate to practice his own consultancy. तो इस तरीके से क्या होता है कि आप मार्केट के अंदर नए इन्वेस्टर्स क्रिएट कर रहे हो, नए एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहे हो, so that no, we're not only generating people who are going to go into an organization, get hired and serve. They're expecting to start working in Pakistan, which is actually in turn developing the economy of the country. Obviously you're adding revenue generation in the country. So this is happening. International क्यों है? उस सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान में पहले ये इंस्टीट्यूट 11 कैंपसेस में ऑपरेट कर रहा था. अब तो हम नंबर ऑफ कैंपसेस भी बढ़ा रहे हैं नेशनली, और इंटरनेशनली भी हम 5 कंट्रीज़ के अंदर रजिस्टर हो चुके हैं. Oh, that's great, that's great. So अब हमारा स्टेटस जो है वो पाकिस्तान से इंटरनेशनल हो गया है, और हमारे जो एलुमनाइज हैं दे आर आल्सो आउटसाइड, एंड द स्टूडेंट्स आल्सो हु आर रजिस्टरिंग फॉर ICMA's program from outside Pakistan. So having those international registrations, we are actually bringing in a lot of global impact. इसके साथ साथ हमारी एक डिजिटल एकेडमी भी है जिसके अंदर हम फिनटेक को कनेक्ट कर रहे हैं. I mean obviously finance with technology, the new buzzword is fintech. So this is what we are approaching to. There's another digital academy that we have. We're working on. We do have students from ICE, International Center of Excellence, जो लोग fintech की agencies चला रहे हैं properly. So what they did is they enroll with us, they started studying, and then we also provide skill based training. तो उसके बाद अब वो बच्चे माशाल्लाह से यहाँ पे उनकी agencies हैं, and they do have clients from UK as well. So imagine what our generation can do if they will register an institute like ours and yours, what they can do to the world. They can make world a better place without even moving to a better place. Immigration के चक्कर लग रहे हैं कि हमें कनाडा की immigration मिल जाए. That's I think it's really common कि हर एक को कनाडा की immigration चाहिए इस वक्त. Every Pakistani is willing to leave the country, but funds कहाँ से आएंगे? That is a big thing. So अगर किसी बच्चे को यहाँ पे रहते हुए ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएं जहाँ पे वो इंटरनेशनली क्वालिफिकेशंस ऑब्टेन कर सकें, तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट of both worlds for them. True that, because see there is a chunk of society. देखिए एक तो हमारा chunk of society है वो बड़ा hi-fi है, very got elite, right? They have like big accounts where there are big balances, and the parents are not worried कि भाई जैसे A levels pass out करेगा we going to then and there send him to some international university. Exactly. इतना amount मैंने बड़े बेटे के लिए रख दिया, इतना second के लिए, but though that is only 10% maybe in I think our country. It's not even 10, it's less than 10 maybe. 6.5%. So, and rest of them are like from last 10 years trying to go outside Pakistan, trying to immigrate to either Australia, Canada, or America, or maybe UK. So why let them worrying to go? I mean, there has to be some opportunities provided within Pakistan only that can facilitate them, that can encourage them to remain in Pakistan, grow the economy of Pakistan, and that looks very difficult to us because there are no opportunities. Global opportunities are not present. But if you guys are providing those opportunities right here in Pakistan, then I see that there is nothing more like it. I mean, they are given this opportunity on the 3rd year of their education that they are moved outside and they can have international education. Again, I mean, that is again an opportunity, and I was so amazed to know कि आप ये भी offer कर रहे हैं. Wonderful. This is something that we actually want to help the youth. Honestly speaking, एक consultancy culture है, वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है. कुछ consultants हैं, they charge, some of them don't charge. But again, when they are not charging you, that means you're going to a university which is paying them a very good price, a very good fees. लेकिन जब उनको अच्छी फीस दे रही है तो आपसे भी अच्छी फीस ही चार्ज कर रही होगी. ऐसे ही है. 50 लाख तो कहीं नहीं गए ना. हाँ, हम रिसीव करें. आई डोंट नो, being मतलब पाकिस्तानीज वी शुड हैव दिस थिंग इन आवर माइंड कि हमें रिसीव नहीं करना यंग जनरेशन को. एंड ऑब्वियसली सिंस दे आर ईगर टू मूव आउट, दे वुड पे एनी प्राइस. चाहे वो लोन लेंगे, चाहे उनके अम्मा पापा अपनी गाड़ी बेचेंगे, चाहे दे हैव टू सेंड देम. बिल्कुल. सो अब आप देखिए कितना बड़ा इशू है. और ऑब्वियसली आफ्टर गोइंग देयर, आफ्टर लिविंग हियर इन पाकिस्तान फॉर अ लाइफ टाइम, बच्चा एडजस्ट भी नहीं हो पा रहा होता. और और जॉब्स कर रहा होता है. एग्जैक्टली, और जॉब्स कर रहा होता है. अब जिस तरह हमारा बच्चा जब जाता है 3rd ईयर में, उसकी प्रोग्रेशन के बाद UK इज प्रोवाइडिंग वीजा, 2 years पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, जो ग्रेजुएट वीजा कहलाता है. तो दैट इज एन ऑप्शन व्हिच पीपल कैन एक्चुअली अवेल. लेकिन अवेयरनेस नहीं है, कोई नहीं बताता. नो कंसल्टेंट टेल्स यू दिस. इवन इफ you'll go, they'll be like, yeah, there will be visa, आपका हो जाएगा. लेकिन अगर नहीं होता, when they call the consultant back,
दे डोंट नो व्हाट टू डू, Yeah. दे लाइक हमने तो स्टूडेंट वीजे पे भेजा था, अब आप देख लें. ऐसा ही है. कोई पाथवे प्रोवाइड तो कर देता है, लेकिन पाथवे के ऊपर गाइडेंस नहीं है. वो गाइडेंस इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड यस आई गेस आप इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी कर रहे हैं. जी बिल्कुल. हम सो जब आप इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी कर रहे हैं और नेशनल प्लेसमेंट भी कर रहे हैं तो फिर तो गारंटीड है ना बच्चे का फ्यूचर. बिल्कुल. सो दैट इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग टू नो. बिल्कुल. हम क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, हमने एजुकेशन की बात की. मैंने एक ऐड देखा था इजी पैसा का. मैंने बताया भी था काफ़ी सारे लोगों को कि वहाँ पे था कि देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ वुमेन हु कैन नॉट इवन रीड देयर ओन निकानामा. सो आई वांट टू नो कि एजुकेशन का क्या रोल होता है किसी भी लड़की की ज़िंदगी में, क्योंकि ये तो पता है कि एक दिन शादी होनी है, करियर और शादी दोनों मैनेज हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं हमने तो शादी करनी है, पढ़ के क्या करना है. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन देयर लाइफ, especially in Pakistan? If you specifically talk about women education, then यहाँ पर इतना ज़्यादा encouragement हमें नज़र नहीं आता अगर हम गांव देहात में जाते हैं. Very truly speaking, I have seen it. I have been going for various women empowerment sessions in remote areas wherein we meet with women who do not have a man on their heads and there is nobody to feed them, and they are actually looking out for some job positions, but obviously they're not well educated, they cannot move to city areas. So what to do? So what we do is that we provide them some skill sets where they can actually make themselves more workable, so that maybe in terms of providing them with sewing machines, जहाँ पे उनको कुछ orders ला कर दे दें कि वो खुद बना लें वो orders knitted garments वाले. कुछ ऐसी skill sets उनको दे दें, कुछ चीज़ें सिखा दें कि आपने जो है वो डिलीवरी के लिए ये फूड आइटम्स आप बना सकते हैं. सो दे नीड सम दे नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन स्किल सेट्स दैट मेक्स देम मोर इम्पॉर्टेंट इन द इकोनॉमी वेयर इन दे कैन एक्चुअली वर्क एंड फीड देयर फैमिलीज. प्रोवाइडिंग दैम विद होता है ना घर में राशन डलवा दिया, वो तो एक ही दफ़ा का डलवाया, वो एक ही दफ़ा का डलवाया, 3 दफ़ा. आप उसको ऐसी स्किल सेट दें वो केपेबल हो जाए टू अर्न समथिंग फॉर हर फैमिली. एंड बाय दिस एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू मैंशन कि ख़वातीन की स्टडीज़ उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितनी एक बंदे की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है. क्योंकि यू नेवर नो ना व्हेन यू आर गेटिंग योर डॉटर मैरिड, यू नेवर नो ना कि दैट गाय इज़ देयर विथ हर फॉर हाउ लॉन्ग. क्या ज़िंदगी की एश्योरेंस है? नहीं है ना. तो फिर वो लड़की अपने घर को अपने बच्चों को कैसे संभालेगी? तो एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में हर किसी की ज़रूरत है और रिक्वायरमेंट है. सो इफ़ यू कैन हेल्प दोज remote women to have those education, or maybe you can develop certain schools or some informal education platforms wherein मैंने क्या किया था कि मैंने वहाँ पे काउंसलर्स बना दिए थे जो एजुकेटेड थे. मैंने कहा था ये तुम्हारे साथ अटैच होगी, तुम इसकी मेंटोर हो, नाउ टीचर. बेसिक आइडिया. और उसके बाद जाके जब मैट्रिक का पेपर होगा तुमने इसका फॉर्म जमा कराना है, तुमने इसको पेपर दिलवाना है. सो अगर आप इस तरह से कुछ लोगों को कनेक्ट कर दें, कुछ इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट कर दें, तो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली अचीव दैट. मगर मसला ये है कि बड़ा डरता है. वी डोंट हैव टू मैनी पीपल हु आर गोइंग टू रिमोट एरियाज एंड डूइंग दैट. हमें ना विजिबिलिटी का बहुत शौक होता है. आज तक मैंने कोई ऐसी पोस्ट नहीं डाली है जिसमें नज़र आ रहा हो कि मैंने कहाँ में गई. जस्ट मैंशनिंग यू सो दैट पीपल गेट टू अंडरस्टैंड कि हमें हर चीज़ को करते हुए वीडियो लेने की ज़रूरत नहीं होती. मैंने ये राशन दिया, मैंने ये पढ़ाया. रादर इट इज़ आवर सिविक सेंस, इट इज़ आवर ड्यूटी, एग्जैक्टली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्चुअली फाइंड पीपल हु माइट नीड हेल्प. आई मीन इतना एजुकेटेड होकर, इतना वुमेन एम्पावरमेंट इतना ज़्यादा मतलब बनकर, आप व्हाट रिटर्न आर यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी? नाउ इट्स हाई टाइम, आई सी दैट इट इज़ हाई टाइम दैट वी गिव बैक टू आवर सोसाइटी. एंड गिविंग बैक टू आवर सोसाइटी बीइंग अ वुमन इज मेकिंग द अदर वुमन empowered. And how can you do that? Education is the first thing that you need to create. Definitely. Once they're educated, they will pave their way. एक educated औरत को पता होता है मैंने क्या करना है, लेकिन then again she needs a lot of support from the family, she needs a lot of support from the maternal family also. And obviously again she needs to understand कि लोग अलग अलग तरह के होते हैं, पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं, सोशल लाइफ्स डिफरेंट होती हैं. तालीम बहुत शऊर देती है इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग. फिर भी तालीम के बावजूद हमारी बच्चियाँ थोड़ी एरोगेंट हो जाती हैं. वो क्या वजह है? हम फ्लेक्सिबिलिटी को मिस कर जाते हैं. जी बिल्कुल. हम अडेप्टेबिलिटी को मिस कर जाते हैं. तो ये वो बज़वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं फॉर वुमेन ऑफ एनी कैडर, एज और लोकेशन, कि आप अपने लाइफ के अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस क्रिएट करें, सो दैट यू बिकम popular, you become famous, you become somebody you always wanted to be.
That's great. अच्छा, आपने जो बात की रिमोट एरियाज में जाके, we do provide online education as well because it's more of a hybrid flexible learning. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में जो एरियाज हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं. I won't even say अंडर डेवलपिंग बट दे आर अंडर डेवलप्ड. तो वहाँ पे जब कनेक्टिविटी ही नहीं है और इतना मैन पावर होता नहीं है, लोग अपने बच्चों को इतना भेजना नहीं चाहते कि ऐसे एरियाज में जाएं, वहाँ पे एजुकेट करें, तो हाउ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन दिस? आई नो इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक, वेरी कंट्रोवर्शियल इट कैन बी. हॉट कंट्रोवर्शियल तो एक डिफरेंट बात है. इम्पॉर्टेंट इज कि व्हाट यू कैन डू. See, rather than asking what government should do, rather than blaming government is not doing anything, I see more that, what I can do to give back to my society. Maybe the people who are in my surrounding, what Samya is doing, what I am doing, what maybe, my people in my office are doing, what my husband is doing, maybe say for example, what my brother-in-law, what my sister is doing to give back to the society. So I try and create, awareness among the people who I live with, so that they are the impetus to develop those, impetus to like bring in more education, bring in more awareness in the people they meet, or maybe in the remote areas, and maybe going forward when they meet other people they will influence them. तो अगर हम अपनी सोसाइटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेना तो ब्लेमिंग कल्चर थोड़ा कम हो जाएगा. गवर्नमेंट क्यों नहीं करी? अरे भाई गवर्नमेंट को छोड़ो, ये बताओ तुम क्या कर रहे हो. एज एन इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या कर रहा है? एज एन इंस्टीट्यूशन ICMA सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या कर रहा है? सो इफ वी बोथ कैन वर्क टुवर्ड्स द रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ द वुमेन थ्रूआउट पाकिस्तान, तो मुझे नहीं लगता कि और 10 लोग हमें देख के अट्रैक्ट नहीं होंगे. बिल्कुल होंगे. और फिर गवर्नमेंट में भी एट अ ग्रेटर पिक्चर विल थिंक अबाउट इट कि यार जब इतने लोग इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं तो व्हाई नॉट वी क्रिएट अ कंसोर्शियम और समथिंग लाइक दैट, wherein people can very formally do that. Exactly. I agree with you. Thank you so much for very insightful thoughts. It was a pleasure talking to you. और बहुत मज़ा आया. जो भी आपने thoughts share किए हमारे साथ, they were very provoking, and I really like the idea of you connecting jobs, a professional life with the personal life. I think that's really important. और जो काफ़ी सारे लोग बात नहीं करते हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को किस तरह कनेक्ट किया जा सकता है. जिस तरह मिस समरीन ने बताया कि नई जॉब ससुराल की तरह होती है और ससुराल नई जॉब की तरह होता है. So the balance between work life is really important, and thank you so much for being on the show with us. Thank you so much, Samya, for calling me. It was wonderful coming here, finding out, what good you're doing to the society, and I'm really amazed to see. Very best of luck to you. Thank you so much. Thank you.